So hi everyone, welcome to you all in my another video. And today video is about registration as a pharmacist in New Zealand, in Australia. So I'm going to be this is a comparative video. So what are the difference to register as a pharmacist in New Zealand? What are the difference in Australia? So my name is Dr. Akram Ahmed. I'm a pharmacist lecturer in Australia, so I always make videos for you. If you are new in my channel, please like and subscribe my videos so I can make videos for you. So now we are going to discuss first about Australia, then I will compare with New Zealand. So the requirement to register as a pharmacist in Australia, the first that you must be a 4-year pharmacy degree, plus you must be a registered pharmacist in your own country, and also additionally if you study in any other country, so you must be eligible to register in the particular state. For example, that New Zealand that Nepali citizens, they study in India, so they also show additional letter from Indian Pharmacy Council of Indian State Pharmacy Council that he is eligible to register in that state. So these are the requirement for pharmacist registration in Australia. So just 4-year pharmacy degree plus you must register in your country. This is a requirement for Australia. But if the case of the New Zealand, that you must have 4-year pharmacy degree, you must be registered pharmacy in your country. Additionally, you must have 1 year फार्मासिस्ट एक्सपीरियंस आफ्टर वंस यू रजिस्टर है ना. तो न्यूजीलैंड में क्या है, 1 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है. आपने जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, 4 साल का आपने डिग्री किया बी फार्म या फार्म डी, उसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, देन आफ्टर दैट यू मस्ट शो 1 year एक्सपीरियंस एज ए फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी और इधर इन द हॉस्पिटल फार्मेसी. इन द केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मगर न्यूजीलैंड में 1 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है. दिस इज द मेन मेजर डिफरेंस. So in Australia we call the skill assessment, called initial skill assessment we call, but in case of the New Zealand we call this is for the initial consideration. Submit application for initial consideration we call in New Zealand. So this is a similar process. In mostly Australian Pharmacy Council, they deal with all the process in Australia, but in New Zealand the Pharmacy Council New Zealand, there's the pharmacycouncil.org.nz. I already gave the link in the description, so they have to you have to follow the process and this New Zealand one. तो न्यूजीलैंड में आपको चाहिए कि आपको जो है एक्सपीरियंस मस्ट है. एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है. पर ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो अगर आप फ्रेशर फार्मासिस्ट हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप जो है ऑस्ट्रेलिया को प्रीफर करें ओवर द न्यूजीलैंड. और न्यूजीलैंड एक छोटी कंट्री है, वहाँ पर इतनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़ी कंट्री है. अगर आप एक मैप में भी देखोगे तो न्यूजीलैंड दिखाई भी नहीं देता है कि ऑस्ट्रेलिया के कंपेरिजन में कि न्यूजीलैंड कितना छोटा सा है ना. एक छोटा सा एक आइलैंड है एज कम्पेयर टू न्यू ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप जो है प्रेफरेंस ऑस्ट्रेलिया को दें. अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये है कि दोनों ही केस में आपको कैप्स एग्ज़ाम लिखना होता है. आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तभी भी कैप्स लिखना है, या आपको न्यूजीलैंड जाना है तभी भी आपको कैप्स एग्ज़ाम लिखना है. तो पहले तो जो है आपको स्किल असेसमेंट करवानी है दोनों जगह पर, फिर आपको जो है कैप्स एग्ज़ाम लिखना है. तो कैप्स एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कराते हैं. हम आपको जो है वी आर गिवन द ऑनलाइन course for you, so you can wherever you are in any country you are living, so you can write your exam. You can prepare with us and you can write this exam. So this exam basically online pharmacy exam, so you can be whatever your country, so you can write. Once you complete this exam, then you can apply for visa for Australia to work in Australia. But in New Zealand you have to additionally you have to go for the step 3. But in the New Zealand there is a step 3 is called you have to pass the New Zealand Pharmacy Legislation course. ये कोर्स मिलता है यहाँ पर. वो आपको जो है 10 मॉड्यूल्स होते हैं, 10 वीक का आपको पढ़ना है, और फिर जो है आपको फिर जो है नेक्स्ट आपको एग्ज़ाम देना होता है उसका. और वंस यू पास द एग्ज़ाम देन यू हैव टू गो फॉर फिर आपको जो है कल की इंटर्नशिप करनी होती है न्यूजीलैंड में. मगर अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो ऑस्ट्रेलिया आपने अगर स्किल असेसमेंट के बाद जब आपने कैप्स एग्ज़ाम पास कर लिया, हमने कोचिंग के साथ में दिलवाई आपको, आपने पास कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा फाइल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप आ सकते हैं. तो ये लेजिस्लेशन वाला कोर्स यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी होता है. मगर जब आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाओगे, जब आप यहाँ जॉब करने लगोगे, जब आप इंटर्नशिप कर रहे होगे यहाँ पर, तो इंटर्नशिप क्या है, एक सीनियर एक फार्मासिस्ट के अंडर में बेसिकली यू हैव टू वर्क फॉर 1 year इधर इन द न्यूजीलैंड और
in the Australia. In both the case, you have to be a supervised 1 year training. This is called internship. This is basically a paid internship, and you will get about $25 to $28 per hour salary. Ever in the New Zealand and Australia is about the same salaries. तो उसके बाद जो है in Australia you can write the exam while you are doing an internship, but in New Zealand before the internship you have to write this law exam, and then you have to go for internship, then you have to write the OSCE exam. तो OSCE दोनों जगह पे देना है, और न्यूजीलैंड में देना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में देना पड़ता है, और उसमें कोई इतनी बात नहीं है, सारे लोग पास कर लेते हो उस एग्जाम के लिए. देन आफ्टर दैट once you pass this exam, then you can be a registered pharmacist either in Australia or New Zealand. तो दोनों में ये डिफरेंस था कि यहाँ पर जो न्यूजीलैंड में एक्सपीरियंस चाहिए और ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. और उसके बाद जो है आपको कैस्ट पास करने के बाद आप डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के लिए PR अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पर यहाँ भी आप फाइल कर सकते हैं वीज़ा के लिए, पर यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड में आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा बिफोर द इंटर्नशिप, और ऑस्ट्रेलिया में आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना है. आपको इंटर्नशिप जब आप कर रहे होंगे, इंटर्नशिप के दौरान ही वो एग्ज़ाम आपको पास करने होगा. दिस इज द मेन डिफरेंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. दिस इज अ कंपैरेटिव वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लीव अ कमेंट प्लीज. आई विल रिप्लाई, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो.